R and S configuration. R and S configuration was given by Chan, Prelog and Ingold in 1962. RS कॉन्फ़िगरेशन चान, प्रिलॉग और इनगोल्ड के द्वारा दी गई 1962 में। टू गिव R and S configuration in an organic compound having one chiral carbon atom there are 4 different atoms or groups attached to this chiral or asymmetric carbon atom. उस कार्बनिक यौगिक को जिसकी हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन देनी है, उसके अंदर यदि एक चिरल कार्बन आइटम है तो उससे 4 विभिन्न परमाणु अथवा समूह जुड़े होते हैं। We give priority order number to these priority order number to these 4 different items or group attached to chiral carbon atom according to sequence rules. अब इस चिरल कार्बन आइटम से जो 4 विभिन्न समूह अथवा परमाणु जुड़े होते हैं उनको हम प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर देते हैं। We give priority order number 1, 2, 3, 4 and so on। हम उनको वरीयता क्रम संख्या या प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 1, 2, 3, 4 देते हैं सीक्वेंस रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल्स। नाउ
these four different items or groups attached to chiral carbon atom are arranged around chiral carbon atom in space in such a way that group, that item or group attach that item or group number 4 attached to chiral carbon atom is going away from viewer, and groups and items or groups number 1, 2, 3 attached to chiral carbon atom are pointing towards viewer. अब ये चार परमाणु अथवा समूह जो चिरल कार्बन आइटम से जुड़े होते हैं, हम उनको चिरल कार्बन आइटम के आसपास स्पेस में इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वरीयता क्रम संख्या 4 वाला समूह परमाणु अथवा समूह देखने वाले से दूर जा रहा है और वरीयता क्रम संख्या वाले प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर वाले आइटम या ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 देखने वाले की तरफ हैं, व्यूअर की तरफ हैं। नाउ वी ड्रॉ एन एरो, which is starting from or atom, or group of priority order 1 and ending on atom or group with priority order number 3
and going through item R group priority order 2. That is the tail of arrow is towards item R group priority order number 1 and head of the arrow is towards item R group priority order number 3. अब हम प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 1 वाले परमाणु अथवा समूह से अब हम एक एरो खींचते हैं, हम एक बाण खींचते हैं जिसका जो कि प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 1 वाले परमाणु अथवा समूह से स्टार्ट होता है, जो प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 1 वाले ग्रुप आइटम या ग्रुप से स्टार्ट होता है और वो प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 3 के ग्रुप या आइटम तक जाता है और वो दो प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 2 वाले परमाणु या समूह से होकर जाता है। यानी उस एरो की टेल प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 1 वाले ग्रुप या आइटम या ग्रुप की तरफ होती है और उसका हेड प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 3 वाले आइटम या ग्रुप की तरफ होती है। इन दिस अरेंजमेंट if arrow is in clockwise direction, arrow is in clockwise direction, then this configuration of organic compound is called as R configuration. R means rictus. R means rictus. Rictus means right. Latin word. R means rictus. Rictus means right. Latin word. And if arrow is in anti-clockwise direction, then
this configuration of organic compound is called as S configuration. S means sinister. Sinister means left. It is also a Latin word. इस प्रबंध में यदि एरो यानी बाण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी सुइयों की दिशा में, घड़ी की सुइयों की दिशा में है, तो ऐसी कार्बनिक यौगिक की कॉन्फ़िगरेशन को हम आर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। आर के मतलब होते हैं रिक्टस, रिक्टस के मतलब होते हैं राइट, और ये एक लैटिन शब्द है। और अगर वही बाण या एरो एंटी क्लॉकवाइज में है, घड़ी की सुइयों की अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, तो वो कहलाती है एस कॉन्फ़िगरेशन। एस के मतलब होते हैं सिनिस्टर, सिनिस्टर के मतलब होते हैं लेफ्ट, ये भी एक लैटिन शब्द है। नाउ वी कैन शो ऑल दीज डिटेल बाय ए स्टिक एंड बॉल मॉडल। अब हम इस पूरे डिटेल को स्टिक और बॉल मॉडल से दिखा सकते हैं। Now RNS configuration can also be explained by stick and ball model. This is your stick and ball model. This is stick and ball model. Now in this stick and ball model, this black carbon atom is a chiral carbon atom, and this red ball is the group or atom with priority order number 1. And this blue ball is a group or atom with priority order number 2, and this yellow ball is a group or atom with priority order number 3, and this green ball is the group or atom with priority order number 4. Now, if two chiral carbon atoms, these 4 different groups or atoms are attached, and they are arranged in space around the chiral carbon atom in such a way that the group or atom with priority order number 4 is going away from the viewer. If suppose you are viewer, it is going away from you. Okay? And the group or atom with priority order number 1, priority order number 2, and priority order number 3 are pointing toward the viewer. That is group, that is this group and this group and this group is pointing towards you. If we draw an arrow starting from group or atom with priority order number 1 and ending at the group or atom with priority order number 3, and it is going through the group or atom with priority order number 2, that is the tail of the arrow is towards the group or atom of priority order number 1, and the head of the arrow is towards the group or atom with priority order number 2, priority order number 3. If arrow is in clockwise direction, then it is R configuration. R means rictus. Rictus means right. It is a Latin word. And if arrow is in anti-clockwise direction, it will be called as S configuration. S means sinister. Sinister means left. It is again Latin word. RNS configuration को हम स्टिक और बॉल मॉडल से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टिक और बॉल मॉडल है। अब इस स्टिक और बॉल मॉडल में ये लाल बॉल जो है वो ग्रुप या आइटम ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 1 को बता रही है, ये ग्रुप या आइटम ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 2 को बता रही है, ये ग्रुप या आइटम ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 3 को बता रही है, और ये जो हरी बॉल है वो ये ग्रुप या आइटम प्रायोरिटी नंबर 4 को बता रही है, और ये बीच में जो काली बॉल है ये चिरल कार्बन आइटम को बता रही है। अब चिरल कार्बन आइटम से लगे ये 4 डिफरेंट ग्रुप या आइटम जो हैं उनको हम स्पेस में चिरल कार्बन आइटम के आसपास इस तरीके से व्यवस्थित करें कि ये ग्रुप या प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 4 वाला ग्रुप या आइटम जो है वो देखने वाले से दूर जा रहा है। यदि आप सपोज देखने वाले हो तो ये आपसे दूर जा रहा है, और प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 1, प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 2, प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 3 के
जो ग्रुप या आइटम है वो देखने वाले की तरफ है, यानी ये आपकी तरफ है। तो अब हम यहाँ पर एक बाण खींचेंगे, एक एरो खींचेंगे जिसका टेल ग्रुप जो स्टार्ट होगा ग्रुप या आइटम प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 1 से और खत्म होगा ग्रुप या आइटम प्रायोरिटी नंबर 3 की तरफ, और ये 2 से होकर जाएगा। अर्थात इसकी टेल जो होगी वो ग्रुप या आइटम प्रायोरिटी नंबर 1 की तरफ होगी और इसका हेड जो होगा वो ग्रुप आइटम प्रायोरिटी नंबर 3 की तरफ होगा और ये 2 से होकर जाएगा। अगर ये एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। आर का मतलब होता है रिक्टस, रिक्टस के मतलब होते हैं राइट, और ये लैटिन शब्द है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये कहलाएगी एस कॉन्फ़िगरेशन। एस का मतलब होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर के मतलब होते हैं लेफ्ट, ये भी लैटिन शब्द है। नाउ आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड by the representation on whiteboard, this whiteboard. Now see here, the group or item with priority order number 1 is shown by red ball. The group or item with priority order number 2 is shown by blue ball. And the chiral carbon item is shown by black ball. And the group or item with priority order number 3 is represented by yellow ball. And the group or item with priority order number 4 is shown by green ball. Now, these four groups are items attached to the chiral carbon atom are arranged in space around the chiral carbon atom in such a way that the group or item with priority order number 4 is going away from the viewer. Suppose you are a viewer, it is going away from you. And the group of items priority order number 1, 2 and 3, they are pointing towards the viewer. That is, they are towards you. Now, if we draw an arrow, start from a group item priority order number 1 and ending at the group item of priority order number 3, and it is passing through the group of item at priority order number 2. If arrow is in clockwise direction, then it is R configuration. R means rictus, rictus means right, it is Latin word. If it is in anti-clockwise direction, then it is S configuration. S means sinister, sinister means left, it is also a Latin word. अब हम R और S कॉन्फ़िगरेशन को व्हाइट बोर्ड पर बने प्रदर्शन के द्वारा भी समझा सकते हैं। इस प्रदर्शन में लाल बाल जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 1 वाला समूह अथवा परमाणु है। इसी तरीके से ब्लू बॉल वाला समूह अथवा परमाणु प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 2 वाला समूह अथवा परमाणु है। और यहाँ पर ब्लैक बॉल जो है वो चिरल कार्बन आइटम है। यहाँ पर येलो बॉल जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 3 वाला समूह अथवा परमाणु है। और यहाँ पर जो हरी बॉल है वो प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 4 वाला समूह अथवा परमाणु है। अब चिरल कार्बन आइटम से लगे इन 4 विभिन्न समूह अथवा परमाणु को हम चिरल कार्बन आइटम के आसपास शून्य में, स्पेस में इस तरीके से व्यवस्थित करें कि प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 4 वाला समूह अथवा परमाणु देखने वाले से दूर जा रहा है। यदि आप देखने वाले हो तो ये आपसे दूर जा रहा है। और प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 1, 2 और 3 के जो समूह अथवा परमाणु है वो देखने वाले की तरफ है, यानी ये आपकी तरफ है। तो हम यहाँ पर एक बाण खींचेंगे जो प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 1 के समूह अथवा परमाणु से प्रारंभ होगा और प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 3 समूह अथवा परमाणु पर ये खत्म होगा और ये 2 से होकर जाएगा। अर्थात इसकी टेल प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 1 समूह के अथवा परमाणु की ओर होगी और इसका हेड जो है प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 3 के समूह अथवा परमाणु की ओर होगी और ये 2 से होकर जाएगा। अगर ये घड़ी की सुइयों की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। आर का अर्थ होता है रिक्टस, रिक्टस के मतलब होते हैं राइट, ये एक लैटिन शब्द है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। एस का मतलब होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर के मतलब होते हैं लेफ्ट और ये भी लैटिन शब्द है। नाउ वी विल टेक सीक्वेंस रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द ग्रुप्स आर आइटम्स आर गिवन प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर। अब हम सीक्वेंस रूल्स लेंगे जिनके आधार पर हम समूह अथवा परमाणु को प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 1, 2, 3 देते हैं।